میں اس مرحلے پر جلال جیسے ہمدرد دوست سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اسپتال کے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے قائم ہوتے ہی خبریں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ غزالہ اور اول خان سے ہونے والی باتوں کا نچوڑ یہ تھا کہ جلال خوشگوار موڈ کے ساتھ کراچی میں موجود تھا اور مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کی پراسرار خوشی کے بارے میں نے 2 مفروضے قائم کر لیے۔ اول یہ کہ دہلی کے حکمرانوں کی گرفت میں آئے ہوئے عبداللہ کو کسی نہ کسی طرح آزادی مل چکی تھی۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ وہ جان والے واقعے سے بے خبر ہو۔ وہ میرے ساتھ اس قدر مخلص تھا کہ میں اپنے اندر اس کی آرزو کو مسترد کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے میں نے ایک صحیح فیصلہ ہی کر لیا۔ جلال میری تلاش میں سرگرداں تھا تو مجھے اس کو فون کر لینا چاہیے تھا۔ جب تک وہ ڈھنگ سے بات کرتا گفتگو جاری رہتی اور جوں ہی وہ جان کے حوالے سے کسی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا میں اسے بحث کرنے یا الجھنے کی بجائے فون بند کر دیتا۔ اسے میرے ٹھکانے کا علم نہیں تھا، وہ مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اس سے اگلا رابطہ اسی وقت ہوتا جب میری خواہش ہوتی۔ نشتر روڈ پر واقع صدف مینشن کی پرخول اور آسیبی عمارت میری دیکھی بھالی تھی۔ اس کے اندرونی حصے کا ماحول پراسرار، نیم تاریک اور اس قدر اجاڑ رکھا گیا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی وحشت اور ڈرونے پن کے آسیبی سائے اعصاب پر مسلط ہو جاتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ جلال اس عمارت کے گراؤنڈ فلور کے اس دفتر میں بیٹھا ہوا ہوگا جہاں مناسب دفتری ماحول اور ساز و سامان دستیاب تھا۔ کچھ دیر تک سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنا ڈالا۔ اس پر عمل کرنے کی صورت میں کسی خرابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولنے والا جلال ہی تھا۔ اس کی آواز سے واقعی شگفتگی جھلک رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت تم کچھ سرور میں معلوم ہو رہے ہو، ورنہ دن بھر کی تھکن آواز کی ساری تازگی نچوڑ لیتی ہے، میں نے کہا۔ اوہو، تو آخرکار تمہارا سراغ مل ہی گیا۔ میری آواز پہچان کر وہ شاید حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ تمہارے مشورے کے مطابق مفرور ہوں اور ایک خفیہ ٹھکانے پر مقیم ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ تمہیں میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بس میں کراچی ہی میں رک گیا ہوں اور تم سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تم کتنی دیر میں اپنے گھر پہنچ سکتے ہو؟ گھر؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ کیا جان ایشکوف والا قصہ اتنی جلدی نمٹ گیا؟ فی الحال اسے بھول جاؤ، ہلکے سے کہکے کے ساتھ جلال کی آواز آئی۔ سیانہ کوا ہمیشہ گو کھاتا ہے۔ اسے یہاں آتے ہی زبردست دوڑ لگانے کی کوشش کی تھی اور ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا ہے۔ اب ان لوگوں کی توجہ تمہاری ذات سے ہٹ کر کہیں اور مرکوز ہو گئی ہے۔ وہ خاصا سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے، اسے دیکھے بالے بغیر اتنی تیز دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں روانی میں کہہ گیا۔ سنجیدہ اور متین؟ اس بار جلال کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس خبیث کو تم نے کب اور کہاں دیکھ لیا؟ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے بکھلا کر اپنی تصحیح کرتے ہوئے کہا، مجھے کہاں دیکھتا؟ میں تو تم سے سنی سنائی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ حقیقت میں نہیں، محاورتاً دوڑا تھا، جلال نے مطمئن ہو کر کہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک ہی زکن میں آسمان سے تارے توڑ دے گا۔ وہ جان سے بے خبر نہیں تھا، اس کی ناکامی کی کوئی تازہ ترین خبر سنا رہا تھا، لیکن اس نے نیٹی جیٹی والے واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ادھر میں خود چند گھنٹوں میں اسپتال کے خشک ماحول سے بیزار ہو گیا تھا۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، میں گھر پہنچ کر تمہیں فون کر دوں گا، لیکن تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ کسی بات پر مجھ سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ کیا میں نے پہلے کبھی تم سے جھگڑا کیا ہے؟ اس نے افسردہ آواز میں پوچھا۔ شاید میری شرط سن کر اسے رنج ہوا تھا۔ پہلے نہیں کیا، مگر اب امکان نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا، بیچ میں بول پڑا۔ بس تم گھر پہنچو، وہاں آمنے سامنے بات ہوگی۔ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ کچھ دیر ہوگی۔ میرے میزبان کچھ مختلف قسم کے ہیں، اپنے چنگل میں پھنسے ہوئے مہمان کو کھال اتارے بغیر گھر نہیں جانے دیتے۔ یہ کون بدمعاش ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ کر تمہیں لے جاتا ہوں۔ میری بات پر وہ برہم ہو گیا۔ نہیں، میں نے جلدی سے اسے منع کر دیا۔ تمہیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، میں آئندہ کے لیے ان سے مراسم استوا رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی میرے مدد کے لیے آنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور فون بند کر دیا۔ کیرڈل دبا کر میں نے اول خان کا نمبر ڈائل کیا تاکہ اسے اپنی نجات کی خبر سنا دوں، مگر اس کی لائن مصروف تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کچھ دیر تک انتظار کیا اور دوبارہ نمبر ملایا۔ اول خان کا فون بدستور مصروف تھا، شاید وہ کسی سے ضروری گفتگو میں مصروف تھا۔ میں بستر پر دراز سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ پوری سگریٹ پھونک کر میں نے تیسری کوشش کی تو رابطہ ہو گیا۔ ابھی جلال کا فون آیا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک لفظ سے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میری آواز پہچانتی اپنی بات شروع کر دی۔ اس نے مجھے اسی وقت تمہارے گھر بلایا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی تھوڑی دیر میں وہیں پہنچ رہے ہو۔ میں نے بھی تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جلال نے کیا گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر سب سامنے آ جائے گا۔ تم اس اسپتال سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟
कोशिश करता हूँ, वो ज़बरदस्ती मुझे नहीं रोक सकते, मैंने सोचते हुए कहा। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो अस्पताल के साफ सुथरे कॉरिडोर में ख्वाबनाक रोशनियों का राज था। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर काउंटर के पीछे बैठी हुई 2 वर्दी पोश नर्सें सफ़ेद परियों की तरह नजर आ रही थीं। मैं इसी तरफ चल पड़ा। अस्पताल में आते हुए मैंने देख लिया था कि ड्यूटी डॉक्टर का कमरा इसी तरफ था। मैंने डॉक्टर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर एक सोफे पर नीम दराज टेलीविज़न देखने में मसरूफ था। स्क्रीन का रुख मुखालिफ समत में होने की वजह से मैं ये नहीं देख सका कि स्क्रीन पर क्या प्रोग्राम चल रहा था। डॉक्टर मेरी सूरत देखते ही संभल कर सोफे पर सीधा हो गया और रिमोट कंट्रोल दबाकर टेलीविज़न ऑफ कर दिया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी के तासुरात दूर से पढ़ सकता था। मैं अस्पताल से छुट्टी चाहता हूँ। मैंने उसके पेशकश का इंतजार किए बगैर उसकी मेज़ के पास से पड़ी हुई कुर्सी संभाली। क्यों? उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। क्या आप सुबह तक डॉक्टर अमजद का इंतजार नहीं करेंगे? सुबह मैं शहर के किसी बेहतर अस्पताल से रजू करूंगा, मैंने बिस्तर पर जोर देकर कहा। क्या यहाँ आपको कोई शिकायत है? मेरे तेवर देखकर वो संभल कर बैठ गया। यहाँ तो मुझे ड्रिप में मिलाकर दवाएं दी जा रही थी। ड्रिप निकालने के बाद मुझे लावारिस छोड़ दिया गया। यूं ही पड़े रहना है तो मैं अपने घर पर ज्यादा आराम से रहूंगा। आपको सुबह तक तो हर हाल में इंतजार करना होगा। हमारा अकाउंट्स ऑफिस सुबह 9 बजे खुलकर 5 बजे बंद हो जाता है। मगर मैंने रात के 10 बजे के करीब 20,000 रुपए जमा कराए थे, मैंने तलखी से कहा। मरीजों की सहूलियत के लिए कैशियर 24 घंटे मौजूद रहता है। यहाँ हर वक्त मरीज आते रहते हैं। आने वाले मरीजों की सहूलियत का इतना ख्याल रखा जाता है तो जाने वाले मरीजों के लिए भी कोई बेहतर बंदोबस्त होना चाहिए। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मरीजों को देखता और इलाज तजवीज़ करता हूँ। इन इंतज़ामी अमूर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अस्पताल का इंतज़ामी अमला भी सुबह 9 बजे आता है। आपकी शिकायत का जवाब वही लोग दे सकेंगे। ये रात आप यहाँ बसर कर लें, क्योंकि आप अभी जाएं या सुबह जाएं, आपको एक रात के रूम चार्जेस अदा करने होंगे। मेरी बातों पर डॉक्टर की पेशानी शिकन आलूद हो गई, मगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर था। इसकी गुफ्तगू तहजीब और शाइस्तगी की हदूद में रही। अपनी महदूद जिम्मेदारियों के बारे में उसका बयान दुरुस्त था। मैंने उसे उलझने का इरादा तर्क कर दिया और नरमी से कहा, मैं यहाँ बहुत मुस्तरिब और बेआराम हूँ। फिलहाल मेरा ऑपरेशन करवाने का इरादा नहीं है। मैं इसी वक्त घर जाना चाहता हूँ। आप डिस्चार्ज फॉर्म पर दस्तखत करके अपने रिस्क पर वापस जा सकते हैं। डॉक्टर ने सपाट लहजे में खुशखबरी सुनाई। डिपॉजिट की रसीद एहतियात से रखें, सुबह आपका हिसाब बन जाएगा। 5 बजे से पहले किसी भी वक्त आएं और रसीद दिखाकर बकिया रकम वापस ले लें। मैं यही चाह रहा था, मैंने ममनूनियत से कहा। मुझे अपना आराम पैसों से ज़्यादा अजीज है। 10 मिनट बाद मैं अस्पताल से निकलकर बाहर सड़क पर पहुंच चुका था, जहां टैक्सियां और रिक्शे मौजूद थे। अस्पताल का कमरा छोड़ने से पहले मैं टेलीफोन लाइन से CSD निकाल कर महफूज करना नहीं भूला था। अस्पताल से हमारे घर का फासला ज़्यादा नहीं था। मौसम खुशगवार होता तो रात के सुकून आवर सन्नाटे में वो रास्ता पैदल भी तय किया जा सकता था, मगर वो रात खुनक थी। मैंने टैक्सी ली और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी बाईं हथेली की पुश्त पर कैनोला की मोटी सी छेदी जाने वाली नस पर लगा हुआ टेप अस्पताल की अगलौती निशानी के तौर पर मेरे साथ था। मैंने अव्वल खान को अपनी वापसी के प्रोग्राम से आगाह किया था। गजाला को खबर नहीं दी थी, मगर जब टैक्सी घर के सामने रुकी तो मैं घर की मुकम्मल रोशनियां देखकर हैरान रह गया। ख्वाबीदा आबादी में हमारा घर रोशनियों के एक जजीरे की तरह जगमगा रहा था। रात के सन्नाटे में टैक्सी का इंजन बंद होने की आवाज़ सुनकर सुल्तान शाह दरवाजे पर आ गया। मैं ड्राइवर को किराया अदा करके पलटा तो वो तीनों ही फाटक के पास मेरे मुंतजिर थे। वीरा की आंखें सुर्ख और मुतवर्रम थीं। इसके होंठों पर फैली हुई बावकार मुस्कुराहट से जाहिर हो रहा था कि मैनोशी की कसरत के बावजूद उसने इस वक्त अपने असाब पर काबू पाया हुआ था। वेरी गुड, लौट के बुद्धू घर को आए। मुझे देखकर उसने बरमहल तबसरा किया। उसकी आवाज़ में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। जलाल का फ़ोन आया था, वो भी पहुंचने का इरादा रखता है। मैं उसे फ़ोन कर दूं कि आप आ गए हैं। गजाला ये कहकर दौड़ती हुई अंदर चली गई। ये सब क्या हो रहा है? सुल्तान शाह ने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा। पहले तुम्हें भगा दिया गया, अब तुम लौट आए हो। जलाल भी आ रहा है। जलाल ये इस राज पर से पर्दा उठाएगा, मैंने उसे जवाब दिया, फिर वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। आज तुमने फिर कम वक्त में बहुत ज़्यादा पी है। आईने में सूरत देखी है अपनी? तुम आ गए हो तो तुम्हारी आंखों के आईनों में अपनी तस्वीर देखूंगी। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली। इससे पहले मैं खुद फरामोशी की दुनिया में खोई हुई थी। इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये ज़्यादा पी कर नसर में शायरी करने लगती है। सुल्तान शाह चिढ़ कर बोला। मेरी और गजाला की मुश्तरका राय थी कि इस सोए हुए जिन को नहीं उठाएंगे।
पता नहीं यह हमारी आवाजें सुनकर कैसे अपने कमरे से बाहर निकल आई। तुम्हारी आवाजें सुनकर कब्र से मुर्दे भी बाहर आ सकते थे। वीरा ने उसे घूरकर तरखी से कहा। डैनी की वापसी की खबर सुनकर तुम इस बुरी तरह चीखे थे कि मैं घबरा गई थी। बस अब ज्यादा तकरार नहीं होगी। मैंने हाथ उठाकर मुदाखलत की। जलाल से पहले अव्वल खान भी आ रहा है। इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ कोई तमाशा नहीं बनना चाहिए। सबके यकजा हो जाने का मतलब है कि कोई अहम इजलास होने वाला है। वीरा ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए चुटकी बजाकर कहा, मैं 10 मिनट में बिल्कुल फ्रेश होकर वापस आती हूँ। इन दोनों को यहाँ पहुँचने में इतना वक्त तो लगेगा। वह मुड़ी और किचन की तरफ चली गई। मैं सुल्तान शाह के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया। इसे अपनी ख्वाबगाह के बाथरूम में जाकर नहाने की जरूरत थी। ये किचन में क्या करने गई है? मैंने कदरे ऊंची आवाज में खुद कलामी की। नहाने से पहले वो लीमुओं पर हाथ साफ करेगी। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कभी इसे जिन में निचोड़ने के लिए नींबू की जरूरत पड़ती है और कभी अस्काच का नशा हिरन करने के लिए लीमुओं का शरबत पीती है। जब फ्रिज खोलता हूँ लीमू गायब होते हैं। गजाला भी आ गई। उसने ख्वाबगाह के इंस्ट्रूमेंट से जलाल को फोन कर दिया था। मेरी गैर मुतवक्का वापसी पर उसके चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। वीरा की वापसी और जलाल की आमद से पहले अव्वल खान आ गया, क्योंकि वह हमारे घर से करीब जमशेद रोड पर रहता था, जबकि जलाल को निश्तर रोड पर वाक़ सद्दफ मैंशन से हमारे घर की दौड़ लगानी थी। हमारे इस इजलास का अहम तरीन शरीक वही था। मौसम सर्द था और रात गहरी हो चुकी थी। ड्राइंग रूम बंद होने के बावजूद मौसम के असरात से मुतासर था। गजाला ने किसी फरमाइश के बगैर चाय बनाने का इरादा जाहिर किया। अव्वल खान और सुल्तान शाह ने खलूसे दिल से उसकी तायद की और वह किचन की तरफ चली गई। मुझे अंदेशा था कि अस्पताल वाले आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। अव्वल खान ने हंसते हुए कहा, ऐसे लालची लोग अपने चुंगल में फंसने वाले मरीजों के खुदाई खैर ख्वाह बन जाते हैं और आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ते। मैंने 20,000 रुपए गिरवी रखवा कर आज़ादी हासिल की है। इस रकम का हिसाब कल होगा। मैंने कहा। रकम के जिक्र पर मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारा चेक लाहौर भिजवा दिया है। कल लाहौर में चेक कैश होते ही एक आदमी यहाँ नकद रकम दे देगा। इसका क्या करना है? अव्वल खान ने पूछा। मेरा कहीं कोई अकाउंट नहीं है। सारे पैसे जहांगीर की बीवी के पास पड़े हुए हैं। ये पैसे अपने अकाउंट में डाल देना। इसमें से 2 लाख तुम्हारे हैं। मैंने कहा। मैं इसमें से 1 रुपया नहीं लूंगा। अव्वल खान ने बरहमी से कहा। वह रकम तुम चारों की है। तुमको मुबारक हो। मुझे अपने काम की बाकायदा तनख्वाह मिलती है। मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं ये रकम अपने अकाउंट में जमा नहीं करा सकता। किसी बदख्वाह को भनक मिल गई तो मेरे किरदार पर हरफगिरी का सिलसिला चल निकलेगा। फिर वो रकम घर पर रख लेना। मैंने अपनी तजवीज़ पर इसरार किए बगैर उससे गुजारिश की। मतलब साफ होगा तो ये पैकेट भी सलमा के पास रखवा दूंगा। काफ़ी दिनों से गोल्डन फार्मेसी के सेठ और उसकी बीवी की कोई खैर खबर नहीं मिली। सुल्तान शाह ने याद दिलाया। बाहर जाने से पहले मैं इनसे मिला था। अब आया हूं तो दूसरी मुलाकात होगी। तुम भूल रहे हो कि सलमा मुझे लाहौर में भी मिली थी। ओह, याद आ गया। चौधरी अजमत सलमा का सगा मामू था। वो चौंक कर बोला। उसकी गिरफ्तारी पर वो तुमसे बहुत नाराज होगी। मैं लाहौर ही में उसे बता दिया था कि मैं बेबस हूँ। इसके मामू के घर से हेरोइन की भारी मिकदार बरामद हुई थी। गजाला ट्रे में चाय के साथ कुछ सैंडविच वगैरह भी बना लाई। मेरा ख्याल था कि उसने बिला वजह तकल्लुफ किया था, लेकिन जब दौर शुरू हुआ तो जरा सी देर में सैंडविच साफ हो गए। गजाला के हिस्से में एक टुकड़ा भी नहीं आ सका था, जबकि मेरी सोई हुई इश्तिहा जाग उठी थी और मजीद खुराक की तलबगार थी। वो दौर खत्म होने से पहले जलाल आ गया। वो पूरी तरह बैठने भी नहीं पाया था कि वीरा बन संवर कर आ गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने इतनी महारत से अपनी आंखों पर हल्का सा मेकअप किया था कि उसकी मखमूर आंखों की सोजन बिल्कुल छुप गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले वो नशे से बदहाल नजर आ रही थी। थोड़ी देर पहले तुम फोन पर चहक रहे थे, इस वक्त उदास और खामोश हो। मैंने जलाल को टोका। इस वक्त मैं अपने मूड की बहाली के लिए उम्दा चाय की एक प्याली की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। जलाल ने फरमाइश की और अपनी बात जारी रखी। चलते चलते एक बुरी खबर मिली है। भारतीय परिंदों का तशद्दुद सहते सहते आखिरकार अब्दुल्ला शहीद हो गया। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। वह बहुत मेहनती और जोशीला कारकुन था। बेहमाना तशद्दुद की वजह से उसके दोनों गुर्दों से खून रवा हो गया और वो जाँ बहक हो गया। ड्राइंग रूम की फिजा यकलख्त पुरसोज हो गई। वो इंकिशाफ मेरे लिए शदीद सदमे का बायस था, क्योंकि मैंने दिल्ली में रहते हुए बहुत करीब से अब्दुल्ला उर्फ वली राम की ज़ाती खिदमात और सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया था। इसकी शहादत ने यकीनी तौर पर आबिद और परवेज के हौसले तोड़ दिए होंगे। अव्वल खान ने फातिहा कहकर दुआ के लिए दोनों हाथ फिजा में उठा दिए। सबने उसकी तकलीद की। इनमें गैर मुस्लिम वीरा भी शामिल थी। वीरा को आंखें मूंद कर हाथ उठाए देख कर बेख्तियार मेरा जी चाहा कि उससे पूछूं कि फातिहा के नाम पर वो क्या पढ़ रही थी,
लेकिन उस गंभीर फिजा में वीरा से ऐसा कोई सवाल करने से जलाल के नाजुक जज्बात मजरूह हो सकते थे। मैंने जुबान नहीं खोली मगर दिल ही दिल में वीरा की अदाकारी की दाद देता रहा। फातिहा के बाद गजाला ने टी पार्ट पे से टी कोसी उतार दी और जलाल के लिए चाय बनाने लगी। जलाल कह रहा था, आज मैं बहुत खुश था। मुझे पहली बार तजर्बा हुआ कि अमरीकी कितने बुज़दिल होते हैं, मगर आखिरी इत्तला ने मुझे दिल गिरफ्तार कर दिया। शहीद अब्दुल्ला के लिए मेरा दिल उदास है। उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, उसके खून का बदला लिया जाएगा। सुल्तान शाह ने पुरजोश लहजे में कहा, हम सबको उसकी मौत का गहरा दुख है। अव्वल खान ने लब कुशाई की, जो होना था वो हो चुका। हमारा ये गम मरने वाले को वापस नहीं ला सकता। देखना यह है कि उसकी कुर्बानी से हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं। हमें माजी के बजाय मुस्तकबिल पर निगाह रखने की जरूरत है। जलाल ने गजाला की पेश की हुई प्याली से गर्म और ताज़ा चाय का एक घूंट लिया, फिर कहा, आज किसी यमनी ने जान को सख्त मार लगाई है। वो अपने जलाल असल हकीकत से बेखबर था और फाखराना अंदाज में इस वाक़े का जिक्र करने जा रहा था। अव्वल खान ने उसकी बात काट कर कहा, उस यमनी का नाम अब्दुल माजिद हुसैनी था। उसने डैनी के बारे में इनामी मालूमात देने के लिए 9 बजे जान को नैटी जैटी वाले मंदिर के पास बुलाया, फिर नाक तोड़कर उसे गहरी खाड़ी में फेंक दिया। ओह! जलाल के होंठों से तहायुर ज़दा आवाज़ बरामद हुई। क्या यह तुम लोगों का कोई प्लाट था? ये अब्दुल माजिद हुसैनी है। अव्वल खान ने मेरी तरफ इशारा किया। जलाल ने मुतासफाना अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी और बोला, मुझे ये जानकर खुशी के साथ अफसोस भी हुआ है कि तुमने ये शानदार मंसूबा बनाते हुए मुझे अपने एतमाद में नहीं लिया। ये कोई बाकायदा मंसूबा नहीं था। डैनी ने उसे छेड़ने के लिए फ़ोन नंबर आजमाए थे। बातें शुरू हुई तो ये यकायक किसी और ट्रैक पर चल पड़ा। इसकी बातें हैरान कुन थीं। जान शीशे में उतरता चला गया और यूं बैठे बिठाए एक सिलसिला चल निकला। तुमने उसे आसपास के किसी पब्लिक बूथ से फ़ोन किया था? जलाल ने मुझसे पूछा। उसके फ़ोन से टेप या कोई और आला मुंसलिक था। यहाँ से CSD ने उसकी निशानदही की तो हम पब्लिक बूथ के लिए निकल खड़े हुए। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। उसने अपनी और अब्दुल माजिद की पूरी गुफ्तगू का टेप कराची के DIG को दिया है, जलाल ने बताया। मुझे हैरत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अब्दुल माजिद की तलाश में है और हर कीमत पर उस तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ है। उसने तुम्हें तसादुम का क्या सबब बताया है? मैंने एक नतीजे पर पहुंचकर सवाल किया। अब्दुल माजिद उससे मिल लेता। वो माजिद को देने के लिए 2 लाख रुपए भी अपने साथ लाया था, लेकिन जान से पहले वहां मोर्चे संभालने वाले अमरीकी कमांडोज माजिद की नजरों में आ गए। वो खुद गायब हो गया। उसके किसी आदमी ने जान को घेर कर उसके दुर्गत बना दी। तुम में से किसी को उसकी कहानी कमजोर या बोझी महसूस नहीं हुई? मैंने पूछा। मजबूत और मरबूत कहानी है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। उसका इसरार है कि कराची में काम करने वाले तमाम अरब ग्रुपों के सरगनों को पकड़कर इनसे माजिद के बारे में कड़ी बाजपुरस की जाए और वो जहां भी है उसे काबू में कर लिया जाए, क्योंकि वह चालाक आदमी डैनी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।